दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, कैसे हैं आप लोग? एक बड़े इम्पोर्टेंट OLQ पे थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है आई थिंक स्टिल देयर इज़ सम कन्फ्यूजन ऑर्गनाइजिंग एबिलिटी। तो हम बात करेंगे पहले कि ऑर्गनाइजिंग एबिलिटी होता क्या है? और उसके बाद उसको हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं? बिकॉज़ जस्ट नोइंग कि व्हाट इज़ OLQ इज़ वन पर्सपेक्टिव एंड मेजर पर्सपेक्टिव lies in कि how to build it. Otherwise there's no point knowing it, no? So, what is organizing ability? What, according to you, what is the thing that comes to your mind when you think of organizing ability? Many people think that it is more of a event management. It's like, ability to organize things. And that is what you end up doing in your stories. You organize things. So, when you say someone going for trekking, so what do is you actually organize the trekking. But that exactly not what it is. So what the content of your actually the story should be कि what exactly happens on the trek and how they manage things and what all things they do and suppose they're part of some research or survey तो वहाँ पे आप वो सारा छोड़ के आप यहाँ आ जाते हैं कि टिकट बुक किया तो होटल बुक किया तो फिर टिकट का RSC था तो वो कंफर्म हो गया तो फिर खाना ले लिया तो फिर फर्स्ट एड ले लिया आप वहाँ पे ज़्यादा समय लगा देते हैं बेसिकली आप अपनी अपॉर्चुनिटी को गंवा देते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी ये नहीं कि आप इवेंट मैनेजमेंट करें आप एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज अपनी दिखाएं इट इज नॉट अबाउट दैट विल रिफ्लेक्ट quite a bit from your personality कि whether you can manage things or not so that will more of a management that's managerial capabilities your ability to manage things or multitask परंतु ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी वो नहीं है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी इज अबाउट योर if I may use the term, it is systematic utilization of available resources. Systematic utilization of available resources towards attainment of desired objectives. How well you use your resources to achieve the desired objective, whatever is the desired objective. ऑब्जेक्टिव्स क्या है पर्सनल लेवल में कि आपको सक्सीड होना है आपको डिफेंस सर्विसेज में आना है मान लीजिए डिफेंस सर्विस में आना ही आपका एम है मतलब ऑब्वियसली तो how do you use the available resources in a systematic manner that is organizing ability for example someone is from a suburban town and he doesn't speak freely in English and that is the constraint he or she feels how do you use the available resources to attain that desired objective of speaking freely in English available resources not that you can keep saying ki, sir I didn't have the opportunity I was not in a convent school I am not in falana dimkana and that's why I could that is finding excuses excuse नहीं पूछ रहा है वो चाहे एक्सक्यूज में उसका इंटरेस्ट नहीं उसका इंटरेस्ट है कि आपके पास जो भी अवेलेबल था जैसे कि मेरे स्टूडेंट है अभी आर्मी में है तो नाम नहीं लूंगा तो अब वो बिहार से हैं बिहार में उन्होंने कहा कि हमारे आसपास तो कोई अंग्रेजी बोलता नहीं था अंग्रेजी माध्यम की जो पढ़ाई होती थी वो बिहारी में होती थी या हिंदी में होती थी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने क्या किया कि मैंने टीवी को अपना सोर्स बना लिया एंड आई यूज्ड टू वॉच बीबीसी and I started watching BBC the intent of learning English. Trust me, guys, it's a true story. The way he was speaking English, it had a British accent. Telling you, he was speaking in British accent. I said, how come your accent is like this? It intrigued me. How could you speak in such an accent? You're from Patna. He said, so I learned from BBC, and that's the accent I picked up. I said, very good. And he got recommended twice because he was true. It's not that he was faking it. सच में और फेकिंग करने में बहुत साफ अंतर दिखता है खासकर जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो
क्यों दिखता है? बिकॉज़ अब आप तो बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। आप कितने डॉट्स कनेक्ट कर लेंगे? कहाँ क्या बोला है पीछे? आप सोचिए कि डिबेट वगैरह जब होता है टीवी में, तो ये सब बोलते हैं, ये सब प्रवक्ता लोग कि 30 सेकंड दे दीजिए, 30 सेकंड दे दीजिए। 30 सेकंड में जब वो लोग इतना बोल देता है आपके पास, तो 4-4 5-5 मिनट तक आप लगातार बोलते हैं। आप कितना बोल जाते हैं आपको समझ में नहीं आता। तो अ, यू गेट कॉट इफ यू लाई। क्या टॉपिक डिवर्ट हो गया। उसका एक और अच्छा बात था। उसने कहा कि सर यहाँ पे यूनिवर्सिटी सबका टाइम बहुत गड़बड़ा गया था। आफ्टर कोविड और समवेयर अराउंड दैट, और पहले भी और जनरली गड़बड़ाया ही रहता है। हमने सोचा यार हम काहे 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में करें, 4 साल में करें। इसलिए हमने जो है इग्नोउ से ग्रेजुएशन किया और हमने उस समय का सही से उपयोग किया, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी की। मैंने ये एग्ज़ाम निकाल दिया, ये एग्ज़ाम निकाल दिया, ये एग्ज़ाम निकाल दिया, इंग्लिश ठीक कर ली। What is he doing? He is systematically utilizing the available resources for attainment of desired objectives. That is what it is. ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी और क्या है? तो आप अगर अपनी स्टोरीज में इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो मत कीजिए। मैगी खरीदा, खरीद के उसका पैकेट फाड़ा, फिर फाड़ने के बाद यही लिख रहे हैं आप लोग स्टोरी में इस तरह का। फाड़ने के बाद उसको पानी में डाला, पानी के बाद टाइमर नोट किया, फिर 2 मिनट तक उबाला, फिर मैगी बन गई, फिर खाया, फिर मजा नहीं आया, थोड़ा सॉल्ट। इज दैट व्हाट shows you as a big organizer? I hope you got the gist of it, what I'm trying to say. कि आप फालतू की चीज़ों में माइन्यूट अपना डिटेल लिख रहे हैं और मेजर ऑब्जेक्टिव जो है एक्शन वाला पार्ट है कि व्हाट ऑल थिंग्स यू कुड डू और व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स में आप जो हैं कुछ लिख ही नहीं रहे हैं। वहाँ खत्म हो गया, जब तो इसी में मैगी बनाने में ही खत्म हो गया स्टोरी। सो सिस्टमैटिक यूटिलाइजेशन ऑफ बेस्ट अवेलेबल मीन्स फॉर अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। एक तो ये बात हुई, एंड दूसरी बात ये है कि ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी इज ऑल्सो योर एबिलिटी टू लुक फॉरवर्ड इन अ वे। आई मीन फॉरवर्ड लुकिंग बंदा ही अच्छा ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी जिसकी हो सकती है। अगर वो नेगेटिव लुकिंग बंदा होगा ना, पेसिमिस्टिक पर्सनैलिटी, जैसे कि जो हम एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब मैं सबको देने बैठूंगा तो एग्जांपल में टाइम निकल जाएगा, परंतु ऐसे कई हैं कि जिन्होंने किया है। एक मेरे स्टूडेंट है, वो भी आईएमए में है अभी। क्या बंदे में बात थी यार, मैं सच बता रहा हूँ। अंग्रेजी उसकी टूटी-फूटी थी, पर उससे वो डरा नहीं। तो वो क्या करता था बंदा, मतलब अलग लेवल का ही है बंदा वो। कैसे उसने अपने आप को रीबिल्ड किया 13-14 अटेम्प्ट के बाद, कहाँ से कहाँ तक वो अपने आप को खींच के ले गया। और उसी छोटे से परिवेश में, गाँव का रहने वाला, छोटे शहर में पढ़ा हुआ बच्चा, और कैसे उसने अपने आप को रीबिल्ड किया, ये बहुत रिमार्केबल स्टोरीज़ हैं। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी बहुत तरह से आपकी पर्सनैलिटी को पॉजिटिवली या नेगेटिवली दिखा सकता है। जो बंदा रोएगा ना कि सर आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल प्लेस सो आई कांट स्पीक इंग्लिश एंड, अब ये सब कोई सुनने वाला नहीं है। अब आपके रिसोर्सेज आपकी मुट्ठी में है, आपके मोबाइल में फुल ऑफ रिसोर्सेज है। आप उसको रिसोर्स की तरह नहीं यूज़ कर रहे हैं, नहीं करना चाहते, तो ये आपकी समस्या है। इंटरव्यूअर आपको उसके लिए क्रेडिट क्यों देगा? जबकि देख रहे हैं हम कि इन्हीं अभावों में भी लोगों ने अनंत को पाया है। कैसे बिल्ड करें ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को, ये सवाल ज़हन में ज़रूर आता है। मेरा अपना जो विचार है वो बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहली बात तो समय को वैल्यू दीजिए, वैल्यू टाइम। हमने कहा सिस्टमैटिक यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल मीन्स और रिसोर्सेज। सबसे बड़ा रिसोर्स आपका टाइम है। टाइम इज योर रिसोर्स। हाउ वेल यू यूज योर टाइम इज ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी इन इटसेल्फ। इसीलिए तो रूटीन के पीछे पड़ता है आयु। कैसे आप टाइम अपना यूज कर रहे हैं, सुबह से लेके रात बजे तक कैसे निकाल देते हैं समय
किन चीज़ों में? सो वैल्यू टाइम एंड इट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स, है ना? पहला काम तो ये कीजिए। दूसरा काम ये कीजिए कि सिस्टमैटिकली यूटिलाइज़ कीजिए अवेलेबल मीन्स को। अब आप कहेंगे सर ये तो रिपीट में आ गया, रिपीट में नहीं, पहले वाला था कि मैं क्या देख रहा हूँ कि आप सिस्टमैटिकली यूटिलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको सिस्टमैटिकली यूटिलाइज़ कीजिए, यानी कि अपने एटीट्यूड में ये बदलाव लाइए कि रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट किताबें अच्छी-अच्छी पढ़ेंगे आप, अल्केमिस्ट अगर किसी ने पढ़ी हो, उसका भी मुख्य सार यही है कि व्हाटएवर यू नीड इज़ बीनीथ योर फीट। रामायण की भी एक पंक्ति मुझे याद आ गई रामचरितमानस की कि सकल पदार्थ एहि जग माहि कर्महीन नर पावत नाहि। ये रोना आप रोना बंद कर दीजिए, यानी कि एक्सक्यूज़ मेंटालिटी से अब आप बाहर आ जाइए कि मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था, ये होता तो मैं ये कर देता वाली मेंटालिटी से बाहर आइए और देखिए मेरे पास ये है और ये भी है और मैं इसको ऐसे यूज़ करूँगा और ऐसे यूज़ कर रहा हूँ और मैं इसको ऐसे अचीव करूँगा। फ्यूचरिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक। अब जितना एक्सक्यूज़ मारेंगे लाइफ में उतना लाइफ आपको एक्सक्यूज़ देती जाएगी और जितना आप ऑप्शन मारेंगे लाइफ में उतना लाइफ आपको ऑप्शन देती जाएगी, रास्ते खोलती जाएगी। समझ में आ रही है आपको बात? रामचरितमानस की एक और पंक्ति कि जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी दिन तैसी। आपके अंदर अगर ये भाव है कि मौके बहुत हैं, तो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो ऐसा दिखेगा। आपके ज़हन में अगर अनफॉर्चुनेटली ये भर गया है कि नहीं है यार, नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, मैनिफेस्ट हो जाएगा, सबकॉन्शियस में जाएगी ना, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है is a thing which has gone deep inside your subconscious. It stays, it reflects. ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच बनाइए, नहीं था जो नहीं था, अब क्या है। रिसोर्सेज का कमी वाला बहाना नहीं चलेगा, कोई इंटरव्यूअर नहीं लेने वाला है। इनफैक्ट आपको खुद ही नहीं लेना चाहिए, तो इंटरव्यूअर का तो बात बाद में आ गया। तो कैसे आप समय का तो एक सॉलिड रूटीन बना लीजिए, सॉलिड रूटीन बनाइए। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आप अकाउंट कीजिए अपना, अपने आप को सेल्फ अकाउंटेबल बन जाइए कि मैं अपने समय का नाश नहीं करूँगा, एक क्षण का भी नाश नहीं करूँगा। ये व्यवहार और भाव अंदर लाइए कि मैं सुबह कब से उठ रहा हूँ, क्या-क्या कर रहा हूँ, क्या-क्या करने वाला हूँ, क्या-क्या कर सकता हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं कौन-कौन से एग्ज़ाम दे रहा हूँ, कैसे-कैसे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ टाइम को, एनर्जी को, क्या मैं सही मार्ग पे हूँ? अगर आपको सेल्फ अकाउंटिंग में दिक्कत नहीं आ रही है, लेफ्ट इज़ इक्वल टू राइट हो रहा है, तो फिर आपको किसी और को अकाउंट करने की ज़रूरत नहीं। इसी को कहते हैं सिस्टमैटिक यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। बेस्ट अवेलेबल रिसोर्स इज योर टाइम, है ना? और ऑब्जेक्टिफाई कीजिए अपने गोल को। ऑब्जेक्टिफाई से मतलब है कि क्लियर कट बात कीजिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत जरूरी है। पावर ऑफ एक्सप्रेशन एक्चुअली क्लैरिटी ऑफ थॉट ज्यादा है और ईज ऑफ लैंग्वेज कम है। मैं ये करूंगा, इसके बाद मैं ये करूंगा, क्लैरिटी लेके आइए, नहीं हुआ तो मैं ये करूंगा, तो एक प्लान बी की ओर और एक प्लान ए की ओर आप अग्रसर हो, जोश टाइप, बिट बाय बिट चलिए। तो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी दो ट्रेनेबल is a very important role and should be built. It's in your hand. It is possible to develop OA. Do develop it. It'll change many things. ओए बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, रीजनिंग एबिलिटी बढ़ेगा, ये सारा खेल ओएल क्यूज का है। जो भी बंदा बकवास कर रहा है टीवी में बैठ के, चाहे यूट्यूब में, कि
OLQ पे ध्यान मत, तो किसमें ध्यान दे? तो OLQ का टेस्ट है, OLQ का हो रहा है तो बोल रहा है OLQ पे ध्यान मत दो। एक बुड़बक आदमी कुछ है, पता नहीं क्या है, बोलता रहता है ऐसे बिना मतलब का बात। हमको समझ ही नहीं आता कि OLQ का ही टेस्ट है, तो ऐसा बात हो गया कि फॉर्मूला पे ध्यान मत दो, जेईई का तैयारी कर रहे हो ना, फॉर्मूला पे ध्यान मत दो। अरे बुड़बक, टेस्ट है OLQ का, असेसमेंट पर्सनैलिटी का हो रहा है। आपके बारे में जब रिपोर्ट पढ़ी जाती है तो OLQ वाइज़ ही पढ़ी जाती है कॉन्फ्रेंस में, कि इसका ये कम है, इसका ये ज़्यादा है, इसका ये कम है, इसका ये ज़्यादा है, ओवरऑल कम है, ज़्यादा है, ऐसे चलता है। हर OLQ के बारे में बात होता है, जब डिस्कशन होता है किसी कैंडिडेट का। तो नहीं हुआ डिस्कशन तो फिर तो खैर बातें अलग। कोई बात नहीं दोस्तों, तो करें इस पे काम, बताएँ, और मेरे इस चैनल को आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दैट्स ऑल। थैंक यू एंड जय हिंद।